So basically this is parent orientation. Basically this is for the new parents, okay, those who introduce their kid in our school. So I'll let you know the facility we are providing to you, because there might be like some questions happening in your mind, बहुत से questions होंगे, so we will try to sort out those questions. Apart of that, we will let you know about our app, school app, on which a kind of facilities are provided. Okay, you will get an access at home. Okay, you need not to come to the school, and you will come to know about all those things. Okay. So the content we are going to discuss today, basically in this one orientation, the first one is regarding the Simon app, means our Apple International School personal app. Okay. And the second one, the GPS enability, means you will come to know how to you access the WAN availability. Okay, where it reached and from where it started and where it is right now. Okay. Next one, the facility to the teacher department, that will be beneficial for you because your kid is going to be introduced in the nursery visualization. Okay. And next one is the Pinnacle League. Basically, this is from 1 to 5 Pinnacle and 6 onward, 6 to 8 League we are saying. And the last one is Next Gen Navigator. This is the new one program introduced by our school side. Okay, these are the things, but I'll let you know the first 3 points instead of the rest of. Okay. So before that, let's talk some of the important things. Okay. Now the first one is the backpack and the timetable. Okay. Now how the bag should be packed of a student. Okay. Like for example, your kid is in play. So basically, in the play, we don't have the number of books, etc. That is not being there. We generally prefer the tiffin. The tiffin must be proper. It should contain all kind of nutrient-based food. Okay. So we usually give the instruction that is given by the teacher. Apart of that, once you will introduce your kid to the nursery or the other classes, you would have the access of the timetable, and you need to put the book according to the timetable, because we are trying to lessen the burden, the weight of the book. That is the major issue in today's time. We all are about it. So that's why daily basis, okay, subjects are being allotted in the timetable. You need to pick the back, the conversation book, the writing book, and the other books according to the timetable. That must be done on the daily basis. If the kid is not capable, then the parent will be responsible for the back management. And if the kid will be like capable, like for the first and second order, we generally prefer that the kid should, okay, under the observation of the parent, they should back their back. Okay, in that case, they will be responsible for their own. Next is the testing. Of course, right now it's not being valuable for you, but later on, of course, it would be. So now the test days are being already allotted in the timetable. Okay, scheduled testing. We usually consider one subject test on one day. And if in any case, for example, the teacher is on leave or any of the other cases, the holiday is there, in that case, the test is postponed to the very next day. And if it is not being postponed to the very next day, consecutive 2 holidays, 3 holidays are free, then you will receive a message till the you get the message, okay, there will be no test on that particular one. Okay, otherwise it will go like smoothly as it's given on the timetable. Now the next one is notebooks and workbook checking. Okay, this record you would have access on the Zoom. You will come to know whether the book is being checked or unchecked of your kid, and or a part of that you can help your kid to maintain the notebook as well. So this is our responsibility basically in the junior classes, but in the senior classes, okay, in the senior classes we prefer that parents should also include themselves, because in today's time, complete and like cooperation from the both sides is required for the maintenance of the study. A part of this, we need to check now how the notebook should be maintained. Okay, that is being told by the kid, why the how it required to maintain, where the date should be written, where the day should be written, where the topic should be written. Either it should be in the caps lock or the small letter, whatever the thing that will be told by the teacher. Okay. Next thing is a right identification point on the first item. Like generally in the junior class, they have the same water bottle. In that case, the student get confused. He मेरी bottle, he मेरी bottle. Not only student, the parents also get confused. वो भी confused हो जाते हैं. It's very common. क्योंकि market के अंदर normally क्या होता है, एक particular अगर design brand आ गया तो we usually started running away and running behind all those things. तो ये बहुत common सा. In that case, we generally prefer and we requested to the parent, please put any kind of identity mark. Like you can write down the name of the student along with the father name, or you can write down the name of a village along with the student name, or either mobile number, something, so that it will be easy to identify the personal item. Okay. Next, self-responsibility of expensive item. Like generally, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, usually wear a kind of silver or gold item. Basically, we don't prefer, we don't allow them to wear such things.
पहनना भी नहीं चाहिए, बट सम टाइम कुछ चीजें होता है रिलेटेड टू द रिलीजन होता है, सेक्रेट होता है, मैंडेटरी रहता है, ठीक है। इन दैट केस वी डू अलाउ, बट मेक श्योर यू विल बी फुली रिस्पांसिबल फॉर दैट, बिकॉज ऐसे केस में अगर किसी को कुछ होम होता है डेफिनेटली इट विल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। ओके, वेलकम मैम, हैव सीट, हैव सीट सर। May I know in which ward, in which class you have a ward? हमारा बच्चा कौन सी क्लास में है? 5th क्लास है, ठीक है, ओके, वो हस्बैंड वाइफ, ओके, ठीक है। Now the next one is the sitting arrangement. Let me clarify regarding the sitting arrangement to you. How we usually allow the student to sit in the class. Normally the sitting arrangement is preferred by the class incharge. Totally depend on the class incharge. वो डिसाइड करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, बट जनरली हम फ्रेंड्स सर्कल का भी ध्यान रखते हैं, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स और उनके साथ बैठ के ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, बट सम टाइम इट मे हैपन कि बच्चे नॉटी हो बहुत ज़्यादा, तो दोनों नॉटी बच्चे भी डोंट प्रेफर एट दैट टाइम। ऑब्वियसली बात है, आपको भी मालूम है, यस वी डू अलाउ ऑन द बर्थडे और स्पेशल डेज पे बच्चे को परमिशन हम देते हैं ड्यूरिंग ब्रेक टाइम और गेम्स लेक्चर, they can enjoy the company of their friend, but at apart of that we used to continue with the rotation, not in the junior classes. Junior classes के अंदर में भी rotation नहीं daily basis होती है, but in the senior classes we prefer the rotation because every student should get the chance to sit on the first bench. हाँ, if any exception case, like for example eyesight issue is there, किसी बच्चे का eyesight issue है, तो उस केस के अंदर the first 3 benches are being preferred for those students, और बाकी के benches के ऊपर there will be regular rotation for that. Mobile phone are not being allowed. This is basically for the senior classes. लेकिन कुछ cases होते हैं, exceptional cases होते हैं. In that case, the students may require the phone. Those who are coming by their own vehicle or बहुत दूर से आ रहे हैं, कोई भी reason हो सकता है. We do allow at that time. Once they enter in the school premises, they need to submit their phone at the reception and their signatures are being taken. ठीक है? But if without informing, they are bringing the phone, okay? If on any of the other class, या फिर बाय मिस्टेक छोटा बच्चा ले लिया जाता है जैसे गलती से खिलौने के बहाने या जैसे, because they don't have the knowledge of that. In that case, we ask the parents to come to the school and we do the other thing. But senior classes के अंदर first day also we did the same along with the warning. But the very next day, okay, बहुत ज़्यादा strict action लेते हैं. Written के अंदर application should be submitted even from the parents side also. Okay, ताकि वो responsible रहे. Because sometimes it may happen कि हमसे वो चीजें छूट जाए, तो it shouldn't be happening. Next is the personal hygiene. Special इसके अंदर हम लोग ध्यान देते हैं. This is specially for the junior classes. Hand wash हो गया जैसे बच्चे को properly, ठीक है, अपनी cleanliness का ध्यान रखना है. For this हमने nannies भी provide किए छोटे बच्चों के लिए, because they are not capable to untie the buttons and etc. They are not capable like to bring the water from the water bottle, because वो अपने को गिरा लेते हैं, खाना नहीं खा सकते. For these things we usually. Apart of that, nail cutting पे हम basically जैसे फोकस करते हैं. The other instruction like the two braids, जिसको चोटी कैसे होनी चाहिए बच्चों की, boys के hair कैसे कॉम होने चाहिए, every person hygiene we used to tell them, okay? And personal sports kit, हाँ, this is the big thing. ये बहुत important point we introduce this time. Like if the kid is like introducing themselves, first onward we are talking about, not the KG1. Okay, introducing a particular, okay, in a particular sport. For example, a kid has opted cricket. एक बच्चे ने opt किया मुझे क्रिकेट खेलना है. The cricket coach is going to teach here. यहाँ पे तो पूरी क्लास को वो खिलाएगा. Obviously बात है. In that case, we usually prefer that one that the parent should provide a personal kit at home. And whenever the instructed by the DPs, they need to bring that one as per the instruction. DP पहले से ही prior instructions देंगे, then they need to bring in the school. उसी दिन उनको लेकर के आना होगा. Apart of that, if they are getting any kind of homework, ठीक है, कोई homework उनको मिल रहा है कि वो कितनी ball की practice उससे करके आनी है, या apart of that anything that must be done by the kid at home, वो उसके द्वारा जरूर होना चाहिए. So this is the big thing. Now the next one is the Zimona. This is the like we can say most important, valuable and wonderful thing for the parents. Okay, for the access of everything. For this, I am going to play a video to you. And you do have your phone. Sir, आपके पास I think ID password नहीं है. Sir, you do have I think ID password. आपके पास होगा. बच्चे का नाम क्या है sir? Okay, just a minute. I will give you the ID password. Might be. Good afternoon, parents. Today in this. Okay. So first of all, you need to download the Apple app. Sir, आप अपने Play Store में से please आप download करेंगे. आप दोनों भी कर सकते हैं, because एक ही ID से multiple logins है.
सर आपके बच्चे का भी आई थिंक अलॉट हो गया होगा नर्सरी से, इफ इट्स पॉसिबल मनमीत भाई जी कैन यू डू मी अ फेवर, एक फेवर कीजिए, बच्चे का नेम ऑलरेडी पता है सफल मैम को, शी विल प्रोवाइड यू द आईडी पासवर्ड ऑफ जिमोन ऐप, ठीक है बच्चे, हमारे नर्सरी का बच्चा है और एक हमारा 5th क्लास का बच्चा, 5th क्लास का तो आई थिंक होगा, अदरवाइज यू कैन आस्क संदीप मैम, शी विल हैव द आईडी पासवर्ड ऑफ ईच एंड एवरी वन। हैव यू डाउनलोडेड नाउ? देखिए आपको इस तरह से हमारे स्कूल का जो आइकन है ये विजिबल होगा प्ले स्टोर के अंदर जाकर के, हाँ नो दिस इज लीव नाउ नॉट दिस वन, प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे एप्पल इंटरनेशनल स्कूल यू नीड टू राइट डाउन, आपको वो लिखना है। इफ इट्स एंड्रॉइड, अगर एंड्रॉइड फोन है तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा, इफ इट्स iOS देन इन दैट केस वी नीड टू शेयर अ लिंक विद यू जिससे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बट नॉर्मली iOS के अंदर क्रोम के थ्रू काम करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ द आप प्ले स्टोर के अंदर जाइए, सर्च में डालिए कस्टमर काइंडली हेल्प है। हाँ जी। इसके अंदर आप मल्टीपल लॉगिन कर सकते हो, घर में जितने भी फोन्स हैं आप सब पे लॉगिन कर सकते हैं, एक ही आईडी पासवर्ड, इसका फायदा आपको बहुत होने वाला है, लाइक बच्चे के कोई लेकर के जो भी रिपोर्ट्स है यू विल हैव द एक्सेस ऑफ दोस थिंग्स, डाउनलोड कर लीजिए इसे। The teacher must have shared with you the ID password maybe. 5th क्लास में हमारा बच्चा है, 5th में हमारा बच्चा है, बच्चे का नाम गुरफतेह ID password at that time. Later on once you enter, जब आप enter करते हो what will happen? नीचे जो visibility है। उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से आप अपने बच्चे का पूरा रिकॉर्ड, पूरी इंफॉर्मेशन चेक मैच करते रहिएगा तो चाहिए। सबसे पहले यहाँ हमारे घर पे एक इंफॉर्मेशन आएगी आपके लिए, जहाँ पे हम डेली पोस्ट करते रहते हैं जो भी न्यू इंफॉर्मेशन है ऑन द स्कूल साइट, जैसे कि अभी यूनिट एग्जाम चल रहे हैं तो यहाँ से आप बच्चे की डेट शीट को भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये टिक बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट पेज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज माय प्रोफाइल, यहाँ से आप अपने बच्चे की जो इंफॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, विलेज नेम एंड द अदर डिटेल ऑफ योर फॉर्म लाइक द क्लास इंचार्ज नेम एंड योर सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आपके पास अपने बच्चे की इंफॉर्मेशन रहेगी, जहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड वहाँ पे मिसिंग है तो आप अपना आधार कार्ड हमें शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन, अटेंडेंस ऑप्शन, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस, लाइक कि हमारा बच्चा किस किस दिन स्कूल प्रेजेंट है और एब्सेंट है। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन है दैट इज इन ग्रीन कलर, सो दैट इज द प्रेजेंट। जो यहाँ पे ब्लू कलर है दैट इज द हॉलीडेज एंड द अदर डेज। उसके बाद जिस दिन बच्चे ने लीव के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर के अंदर विजिबल होगा। सो लाइक दिस स्टूडेंट the 50 days is present till now and the total present is 33 in this section and the 3 absent in this entire session. Monthly or session wise? Attendance के बाद आप बैक आएंगे, उसके बाद आपके पास है यहाँ पे ऑप्शन आपको लीव अप्लाई करनी, फॉर एग्जांपल आप ट्रायल कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिएगा बाद में, ट्रायल कर सकते हैं तो आप उन्हें यहाँ से डायरेक्टली लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक डेट चूज करनी है कि बच्चा किस दिन एब्सेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये फर्स्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, अगर सेम डे मंडे के लिए है तो दोनों जगह सेम डेट आएगी 21 21, और अगर बच्चा 2-3 दिन के लिए ड्यूटी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली डेट सेलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे रीजन, फॉर एग्जांपल ये आपका टाइम हो गया, जैसे एंडिंग वर्क। अब अप्लाई कर दो। अब आपको कैसे पता लगेगा कि पहुंची टीचर के पास कि नहीं पहुंची? So just type this reason for your work and then click on apply button
कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो बच्चे की लीव है वो अप्रूव हुई है या अप्रूव, अगर तो जनरल है तो अप्रूव है, बट ड्यूरिंग द एग्जाम डेज जो आपके बच्चे की लीव है वो क्लास टीचर डिसअप्रूव भी कर सकता है। तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि इस बच्चे की जो लीव है 3 डिसअप्रूव हो चुकी है, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इट मीन कि ये वाली जो लीव है वो अप्रूवल के लिए भी पेंडिंग है। जैसे ही क्लास इंचार्ज इस लीव को अप्रूव करेंगे देन यू विल सी द ग्रीन कलर के। सो नेक्स्ट मॉड्यूल इज, इसके बाद है लेक्चर। सो ये वाली लेक्चर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगी ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि समर ब्रेक के दौरान हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं ताकि आप स्टडी के साथ बच्चे और रेगुलर क्लासेस को यहाँ से अटेंड कर सकता है। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे, बट उससे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे होमवर्क। यहाँ से आप अपने बच्चे का रेगुलर होमवर्क चेक कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, एंड ये होमवर्क आपको प्रैक्टिस का भी शो करेगा कि लास्ट डेज में बच्चे का अगर कोई होमवर्क पेंडिंग है तो आप बैकडेट्स पे जाके भी अपने बच्चे का होमवर्क चेक कर। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलरली आप अपने बच्चे का होमवर्क यहाँ से चेक करते रहिए। होमवर्क के बाद है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ग्रुप डाउनलोड। ग्रुप डाउनलोड में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी जो हमारी तरफ से बच्चे के लिए प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ट। यहाँ पे जो बच्चे के वीकली या रेगुलरली टेस्ट चल रहे हैं उसका पूरा परफॉर्मा आपको यहाँ पे शेयर किया गया है कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट। उसके बाद है डेट शीट, जैसे अभी यूनिट एग्जाम चल रही है तो यूनिट एग्जाम की डेट शीट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद टर्म 1 का जो सिलेबस है बच्चे का वो सिलेबस कैटेगरी के अंदर अवेलेबल रहेगा। सब्जेक्ट वाइज और टर्म वाइज आप यहाँ से सिलेबस चेक कर सकते हैं। सिलेबस चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इस टैब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे आप उस डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी और वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका फीस का मॉड्यूल है, आपको फीस की डिटेल आएगी। ये आपको इसमें दिखाई देगा मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके करंट मंथ की फीस अभी तक पेड नहीं है तो वो आपको यहाँ पे विजिबल है। जैसे कि फीस जो है वो हम क्वार्टरली पे करते हैं, बट यहाँ पे जो फीस आपको डिस्प्ले रहेगा, जो बैलेंस डिस्प्ले रहेगा, ये आपको मंथ वाइज रहेगा। तो जैसे इस स्टूडेंट की जो फीस है वो अप्रैल और मई की पेड है, अभी तक जून मंथ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे फीस जून में अभी बैलेंस 0 है। ठीक है ना, टोटल वहां आया, पेज आया, मंथ का नीचे रहेगा बैलेंस, तो बाकी बैलेंस कराएगा पूरे साल। तो बस ओके, इफ यू अगर इसमें कोई मिसमैच होता है तो यू कैन इन्फॉर्म अस एनी टाइम। अगर आपका बच्चा बैंक से आ जा रहा है और आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन द बटन। और पार्ट ऑफ दैट फीस में एक और मॉड्यूल हमने इंक्लूड किया है, दैट इज फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट के अंदर कई बार क्या होता है कि कुछ रिकॉर्ड रीसेट करने के कारण किसी भी कारण से, वैसे तो ऐसा नहीं होता, जीपे फोन पे व्हाटएवर यू आर यूजिंग हमारा रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन रहता है, फिर भी अगर किसी कारण से अगर होता है, कोई भी रीजन से होता है, इन दैट केस प्लीज आप स्कूल से डिमांड कर सकते हैं, आप अपने पास एक स्लिप, यू विल बी सो रिस्पांसिबल टू टेक द स्लिप फ्रॉम देम, आप कन्वे कर दीजिए। आप बैंक ड्राइवर के थ्रू आप रिसीप्ट अगर चाहते हैं यू कैन आस्क दैम, अगर आपको उनके थ्रू चाहिए या आपके बच्चे के बैंक के अंदर यू आर डिमांडिंग, और इफ यू आर विलिंग टू कम ऑन सम ऑफ द डे प्लीज रिसीव फ्रॉम देम, प्लीज ऑनलाइन पेमेंट का वहाँ पे। अपार्ट ऑफ दैट आप फोन पे भी लाइक 41,000 नंबर है हमारा, ओके, 833941,000, यू कैन मेक अ कॉल ओवर हियर, वहाँ पे कॉल कीजिए एंड यू कैन डिमांड फॉर द रिसिप्ट ओवर हियर। वो डिमांड के ऑनलाइन का थोड़ा सा रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट इज द वैन लोकेशन को लेकर के। फॉर दिस आप लोगों को उसके रिगार्डिंग भी एक ऐप डाउनलोड करने की तो ज़्यादा बेहतर होगा, दैट इज अपेक्स प्रो ऐप। आप उसके अंदर जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कर लीजिए प्लीज, वैसे एक्सेस यहाँ से भी हो जाता है पर वहाँ से ज़्यादा बेटर एक्सेस हो
जाइए सर, अपेक्स APEX लिखा होगा, APEX करके येलो पर रखी होगी, आप कर लीजिए। मैं आईडी पासवर्ड आपको शेयर कर देती हूँ इसका। हाँ जी सर, दिस वन, ये यस एग्जैक्टली। आप भी ना अपेक्स प्ले स्टोर में चले जाइए, लाइक मैं करती हूँ, यहाँ नहीं हाँ, ये प्ले स्टोर में चले जाइए। आईडी पासवर्ड आपके साथ शेयर करती हूँ, वो आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिए, उससे आप लोग वैन का लाइव स्टेटस एक्सेस कर सकते हैं, सभी वैन्स का, नॉट ओनली योर्स, आप जितनी भी स्कूल वैन है इस समय कहाँ पर, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कहाँ पर वो कितने समय खड़ी हुई। समटाइम कई बार होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप कॉल करते हो, वैन नहीं पहुंची थी, बच्चा वेट कर रहा है, या आप स्टॉपेज के ऊपर आप ड्रॉप कर रहे हो, थोड़ा दूर है घर से स्टॉपेज, ऐसे केसेस आते हैं, आप वेट कर रहे हो, या फिर फॉगी सीजन के कारण भी प्रॉब्लम आती है सर, जैसे आएगा थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है, तो एट दैट टाइम इफ यू आर वेटिंग, तो आप समय से पहले आके वहाँ खड़े हो, आप यू कैन एक्सेस द टाइमिंग ओवर देयर, देन यू मे कम, फिर आप वहाँ पर आ सकते हैं, तो आपको दिखेगा चलते हुए, रुकते हुए, या कहीं खड़ी है, स्कूल में खड़ी है, बाहर गई है, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू एक्सेस। इसका आईडी पासवर्ड मैं आपको जरा बता देती हूँ, प्लीज लॉगिन कर लीजिए, अगर डाउनलोड हो गई तो सर, डाउनलोड हो गई, ठीक है, आईडी पासवर्ड आपको बता दें सर। मैम आपकी होगी डाउनलोड, ओके सर। आईडी ये जो रहेगा यूजर आईडी के अंदर एप्पल, ए कैपिटल है, एप्पल, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6, यहाँ ये आप यहाँ से सीधे ट्रैक कर सकते हैं, अपने बच्चे की वैन का नंबर आपको बस पता होना चाहिए, बस वो वैन का नंबर। अभी देखिए सभी रेड कलर की दिख रही है ना आपको, और कितने बजे से वो रेड कलर की, ये भी आपको दिखेगा कि कब से रुकी हुई है और कहाँ रुकी हुई है, वो लोकेशन में आप क्लिक करिएगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप इवन उसको चलते हुए बाकायदा मैप दे सकते हो, राइट ना कभी कोई भी चल रही है तो मैं आपको लाइव भी दिखा दूँगी सर, ठीक है। ये बैक करके आप दोबारा अपने एप्पल ऐप को ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप अभी तो राइट नाउ तो कोई चल नहीं रही है, तो आपको विजिबिलिटी आ जाएगी। जो ब्लैक कलर की जैसे शो हो रही है, ग्रे कलर की शो हो रही है, या तो वो अपेक्स पे हमने नहीं दिखाई हुई है, या फिर वो किसी कारण से खराब है, या फिर हमारे मैकेनिक के पास या किसी भी तरह के काम के लिए गई हुई है, फॉर एग्जाम्पल सर्विस वगैरह के लिए। जो रेड कलर की शो हुई है वो इस समय रुकी हुई है, और बाकी दो कलर आपको और शो होंगे, येलो जब उसका इंजन स्टार्ट है बट इट्स नॉट रनिंग, इंजन चल रहा है, लाइक हम बच्चे को जब पिक करते हैं तो इंजन चलता रहता है, हमारे पास रुकी होती है, एंड ग्रीन आपको तब दिखेगा, ग्रीन में आपको बकायदा चलते हुए 3D की तरह आपको पिक आएगी तरह से, ओके, दैट विल बी विजिबल टू यू, तो आपको पता लगेगा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्योंकि एबल टू एक्सेस, बस आपको बस का नंबर अपना पता होना चाहिए, आपके बच्चे का पैन नंबर क्या है, तो आप उस वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है सर। सो लेट्स कंटिन्यू and check their location on the GPS। तो ये जैसे कि ये बच्चा है, इसका जो वैन नंबर है that is 6, और एट प्रेजेंट जो वैन है that is in, ठीक है। तो जैसे ही ये वैन अगर मूव होती है, आपका बच्चा स्कूल टाइम की बात कर रहा है या मॉर्निंग आप जो उसको ड्रॉप करते हैं, तो उसके बाद ये आपको लाइव लोकेशन शो करेगा जो आपका वैन था रहेगा। तो यहाँ से आप अपने बच्चे को भी ट्रैक कर सकते हैं अबाउट देयर ट्रैक। कई बार होता है कि वैन लेट हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक और सम अदर कंडीशन, तो आप ये चेक कर सकते
जाता है, the छोटी day चीजें is सीखता है तो भूल 20 जाता है, तो ये यूज 30 होता एंड यहाँ पे आपको दिखाना कि ये क्लास है लाइव है 8 AM ये 1 सेकंड की स्क्रीन पैरेंट्स आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने मोबाइल में तो जूम रखना होगा, ठीक है, बाकी बस यहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा आपको सेटिंग्स वगैरह नथिंग यू नीड टू डू फॉर दिस। ये डेमो के रहा था कि फिर वो जैसे सर ने अपना ही रखा है, तो राइट नाउ अभी मैं स्टार्ट भी करिए तो हमें वेटिंग फॉर द होस्ट, टू बी लाइव, इस तरीके से हमारा मैसेज आ रहा है। you can see that we have a drawing. तो यहाँ से हम जो अपनी क्लास है ऑनलाइन ये हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द बेनिफिशियल पॉइंट है, बेनिफिशियल भी कह सकते हैं, वैसे इफेक्टिव भी कह सकते हैं, समटाइम्स इट माइट नॉट बी बेनिफिशियल टू समवन, जहाँ पे प्रॉब्लम रहता है, नेटवर्क इशू रहता है, वहाँ तो प्रैक्टिकल रहता है। So depending on your internet connectivity, it takes some first time it takes the time to इस set तरह से up. वीडियो रहेगी, प्योर मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टिंग, इस तरीके से आपको वीडियो दिखा जाएगा और फिर सामने स्क्रीन के ऊपर एवरीथिंग विल बी विजिबल, टीचर विल बी अवेलेबल ऑन द वीडियो, ऑन द कैमरा एंड फ्रॉम द स्टूडेंट साइड कैमरा विल आल्सो बी ऑन और इस तरीके से हम कनेक्ट हो जाएंगे। So next module है हमारे पास today's part. So every day we are sharing the best part for your part. So यहाँ से आप चेक कर सकते हैं day wise यहाँ पे असेंबली आपको वैसे नहीं होती है जैसे अर्ली टाइम हमारे समय में होती थी, हमारे टाइम पे देखो Next प्रार्थना option is असेंबली कितने तरीके से होती so है, whenever there is any circular from the CBSE or from the Punjab government, then we will share here. So from here you can check. So that's why we used to Give us provide like events like the holidays and the other days which we are going to celebrate in our school. So आपको वो यहाँ पे available है. So at present यहाँ पे आपको second Saturday and the holidays है वो available है. So आप यहाँ पे उन चीजों को check करें. इसके बाद next है communication option. Communication के through you can send a message to us. जैसे कि आप WhatsApp पे मैसेज सेंड करते हैं क्लास टीचर को या अपने फ्रेंड्स को, उसी तरह से आप अगर हमसे कोई बात कहना चाहते हैं, हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, so you can share with the help of communication. कम्युनिकेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपोज के ऊपर क्लिक करना है, ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी टाइपिंग सेलेक्ट करनी है, टाइटल जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं रिगार्डिंग अगर आपने अपने बच्चे की हर चीज से रिलेटेड कोई बात क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर को इन्फॉर्म करनी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बिना और भी कोई अगर आपको कोई मैसेज है जो कन्वे करना है टू द सब्जेक्ट टीचर और द क्लास टीचर, ये इसका फायदा ये होगा लाइक समटाइम वी डोंट हैव द नंबर ऑफ द टीचर, हम उस पर्टिकुलर टीचर से बात करना चाहते हैं, जूनियर क्लासेस में तो नॉर्मली मदर टीचर सिस्टम चलता है, तो उसमें एक ही टीचर होता है, नल नीड टू हैव दैट, ठीक है, बट इन सीनियर क्लासेस सब्जेक्ट टीचर अलग अलग होते हैं, हमें एक पर्टिकुलर टीचर से बात करनी है, बट हमारे पास नंबर नहीं है, नॉर्मली हम क्या करेंगे, जज को कॉल करेंगे, क्लास प्लीज इंग्लिश टीचर का नंबर दीजिए, मैथमेटिक्स टीचर, वी यूजुअली आस्क, इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका फायदा ये है इस कम्युनिकेशन का, इस मैसेज का डायरेक्ट एक्सेस एडमिन डिपार्टमेंट को होता है, सिर्फ टीचर नहीं एडमिन डिपार्टमेंट भी देखेगा, अगर टीचर सामने से उसको चेक करके रिप्लाई नहीं करता है या आपको रिवर्ट करके आपको कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करता है, then they will get the access over there. तो जैसे हमारे टीचर्स मीटिंग के दौरान हमारे भी पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के कामकाज को लेकर के डिस्कशन किया जाता है, एट दैट टाइम दैट विल आल्सो बी नोटिफाइड हो, वो वहाँ पर नोटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से हमें कन्वे कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास SMS का। तो SMS जैसे हमारे फोन में रेगुलर SMS होते हैं वैसे ही ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लास टेस्ट रिजल्ट। यहाँ से आप अपने बच्चे का जो रेगुलरली वीकली टेस्ट हो रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। लाइक हमारे छोटूगा तो तेजस का नोटिफाइड नॉट बी पॉसिबल, आपके बच्चे का होगा शायद, क्लास टेस्ट रिजल्ट चेक करिए जरा, क्लास टेस्ट रिजल्ट चेक करिए, मान लिया अभी टेस्ट हुए हैं तो इस वीक के जो भी टेस्ट जिसमें सब्जेक्ट हुए हैं उसके मार्क्स का सर्टिफिकेट भी है, मैं लगे ये बस क्लास टेस्ट हम इसे पहुंच गए थे कि ये देखिए इसका टेस्ट का रिजल्ट आ गया सर, यहाँ पर जो अभी वीकली टेस्ट चल रहे हैं उसका रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, बच्चा मतलब पूरे काम वाले बच्चा डरता हुआ बताता है या पेरेंट्स बाहर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल
देखना है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली यू कैन एक्सेस फ्रॉम हियर, यहाँ से सीधे आप लोग चेक कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आ जाए डेट, टॉपिक, जिसका टेस्ट हुआ, जिस डेट को हुआ, जिस टीचर ने दिया है, वो सब डिटेल यहाँ पर आती है, प्लस इसका वहाँ पे रिपोर्ट आती है। ये पंजाबी का एक टेस्ट हुआ तो बच्चे के इतने परसेंटेज मार्क्स रहे, यहाँ पर देखिए हिंदी का टेस्ट हुआ तो बच्चे के इतने परसेंट मार्क्स रहे, तो ये एक्सेस आपको रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाला से मुझे मॉड्यूल का आपको दे दिया होगा, तो लेटर ऑन इट विल बी यूज्ड फॉर अस। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा जो ओपन है, सो द स्टूडेंट गेट्स इन एनवायरनमेंट सब्जेक्ट हाईएस्ट मार्क्स इज 100%, एवरेज इज 0 and 3 tests are conducted for that subject. Similarly, Punjabi 100%, computer 100%, Hindi 100, mathematics 100, and in English it's just 90. And you can also see the total number of test information is also available here. जैसे ही आप स्क्रॉल अप करोगे, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन रहेगी टेस्ट वाइज, कौन सी डेट को कौन सा टेस्ट जो था वो कंडक्ट किया गया है, उसमें आपके बच्चे की परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको शो करेगा, वो पूरी इंफॉर्मेशन के साथ उसका रैंक कौन सा बना है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एंड सो ऑन, द टेस्ट नेम, टेस्ट डेट, marks and the 100% and the test teacher. So यहाँ से आप अपने बच्चे की जो पूरी परफॉर्मेंस है, वीकली जो टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से आप अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड अगर टीचर से कुछ भी कन्वे करना है, तो उसके लिए आप ऑफिस कम्युनिकेशन के अंदर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये आपके बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसके बाद टेस्ट रिकॉर्ड के बाद टाइम टेबल, तो टाइम टेबल में आप अपने बच्चे का रेगुलर टाइम टेबल चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियड वाइज शेड्यूल, यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा अलॉन्ग विद द टीचर के साथ। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे का करैक्ट ऐड कर सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल रहेगा, और इसी के साथ आप उनके बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव ऑप्शन फॉर द गैलरी ऑप्शन। गैलरी ऑप्शन में आपको जो हम स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं, उन सभी की पिक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी ग्रेड वाइज, ठीक है। क्लास वाइज आप अपने बच्चे की जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। So here is some mention of some pictures that the activities we have conducted so far in last week. तो यहाँ से आप उनको प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं, और भी जो पिक्चर्स है वो जैसे आप एक्टिविटी पे क्लिक करोगे उसके अंदर आपको सारी पिक्चर्स जो उस एक्टिविटी से रिलेटेड है वो अवेलेबल रहेगी। Next option is we have exam result. So after the unit exam, so you can check your student performance here. Next one is achievement. If you got any achievement, so we will share the information through the achievement. Next, website, Facebook and Instagram. So these options are social media links. So यहाँ से आप हमारे साथ social media जैसे Facebook हो गई, You can directly connect with us on social media as well. Okay, so that one is been done. This is also been done. ये भी हमारा हो गया. We use to take care. Now the next one thing. सर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 1 to 5 पे कल बुक्स आई हुई है, आपने देखा होगा है ना। लीड का हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड 6 to 8 लीड बुक्स वी आर यूजिंग ओवर देयर। नाउ एज यू ओपन द फर्स्ट वन पेज, आप मुझे दिखा रहे थे स्क्रीन के ऊपर, आप आईडी पासवर्ड मैंने आस्क्ड यू, तो आप लीड बार प्लीज ओपन कर लीजिए। यस, वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड दीस लिंक्स विद यू। हमने लिंक आपके साथ शेयर करे थे जिससे आप एंटर हुए थे, आपको आया था एक नोटिफिकेशन जैसे पेज आपके स्क्रीन पे ओपन हुआ था, इन विच दे डिमांडेड द आईडी पासवर्ड डिमांड किया था लीड वाला इन द वेरी स्टार्टिंग यू ओपन, आपने शुरुआत में जो ओपन किया था अपने फोन में, आ गया। अब देखिए इसमें एंटर कैसे करना, हाउ टू लॉग इन। देयर इज नो सेपरेट आईडी पासवर्ड फॉर द स्टूडेंट। आपको इसमें अपना
with the OTP, ये एक्चुअली जो किताबें बच्चों को लगी है, बुक्स लगी है, the every information is being given over there कि बच्चा घर पे क्या एक्सेस कर सकता है उस एप्स या उस पब्लिशर के बुक के रिगार्डिंग की, उसके बारे में मान लीजिए। OTP आने के बाद मैम OTP फिल करिएगा आप। OTP आया था? नहीं, मैं मदद करती हूँ आपकी। कोई बात नहीं, मैं बता आ गया। हाँ, ये OTP भर दीजिए वहाँ जाकर। यस, ये OTP भर दीजिए। हाँ जी, ये लिंक हमने एंड्रॉइड के और iOS एप्पल मोबाइल डिवाइसेस के अलग अलग दिए हैं, सभी अलग अलग प्रेफर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोवाइड किए हैं। जब अभी एक बार आप लॉगिन कर दोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर विजिबिलिटी आएगी, इस तरीके से आपको विजिबिलिटी आएगी इंटरफेस वंस यू विल लॉग इन। पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड OTP जब यूज करते हैं तो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, आप ना वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ही मत दीजिए। OTP नाम क्या था आपका? शेयर करने का लिंक तो शेयर कर, आप वो लिंक है ना जो टीचर ने आपको शेयर किया है व्हाट्सएप के ऊपर, हाँ जी वो वहाँ से कर दीजिए। व्हाट्सएप पे टीचर ने आपको लिंक शेयर किया होगा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फ्री शेयर करवा दोगे, वो आप लिंक के थ्रू एंटर होइएगा। उस लिंक के थ्रू एंटर होंगे, फिर आपको अपना फोन नंबर देन OTP आपका नीचे ना दो ऑप्शन होती है, आप पासवर्ड से एंटर होना चाहते हैं कि OTP से, तो ऑलवेज प्रेफर द OTP, पासवर्ड मत करिएगा। पासवर्ड के अंदर इसमें प्रॉब्लम रहती है, बच्चे भूल जाते हैं सर, और जब आपके बच्चे ने पासवर्ड चेंज हो गया तो उसको मल्टीपल लॉगिन नहीं है, एक उससे एक ही लॉगिन रहता है, तो अगर आप OTP यूज़ करोगे तो मल्टीपल लॉगिन कर सकते हो और अलग अलग नंबर से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर वहाँ पे आप एंटर करने के बाद ना वो मतलब बच्चे का ID वहाँ पे बच जाता है, बच्चे का नेम आ जाएगा ऊपर, ठीक है। फिर आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह दिखेंगे, उस पिक्चर्स के अंदर आपको अलग अलग मॉड्यूल्स दिखेंगे। बेसिकली इसके अंदर आपको फायदा क्या है देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ। आपने बच्चों की किताबों के अंदर देखा होगा तो किताबों के अंदर जो चीज़ें करवाई गई हैं उसमें I do, we do, you do वाला सिस्टम होता है, ठीक है, जो टीचर कराएगा, ठीक है, जो टीचर और बच्चे मिलकर क्लास में करेंगे, और एंड में जो बच्चा घर पे करेगा जिसको हम लोग आई होमवर्क के तौर पे भी जानते हैं, वो होमवर्क का एक्सेस यहाँ पर भी होता है। वैसे तो होमवर्क आपको डायरेक्टली दिमाग ऐप पे दिख जाएगा, फिर भी कभी आपको डाउट केस लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं वो वाले होमवर्क में कुछ गलत बच्चे ने नोट डाउन किया है या टीचर ने गलत अपलोड कर दिया, कुछ आपको थोड़ा सा भी डाउट केस लगता है तो एक सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ से रहेगा। सर ये 1 to 5 का रहेगा, ये KG का नहीं है, 1 to 5 से रहता है, ठीक है। वैसे तो बुक्स वहाँ भी लगी है, बट ये हमने वहाँ पे बच्चों का ये वाला एक्सेस हमने नहीं करवाया। तो यहाँ पर ये जो पिक्स आपको दिखता है, एक आपको के बुक के पीछे ये देखिएगा स्कैन कोड दिया होगा सभी किताबों में, देखा आपने। आप इसको जब स्कैन करोगे ना तो आपको बुक्स का जितना भी वो है CRL होता है क्लासरूम रिसोर्स है, मतलब वीडियो चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो है, कोई पार्ट है, वो वीडियो के रूप में, कहानी के रूप में एनिमेटेड के तौर पर दिखाया जाता है, तो यहाँ से स्कैन करके सीधे कर लेंगे। आजकल स्कैनर तो वजह यूज होने लग गया वैसे भी, तो इस तरीके से बच्चा वहाँ से यूज़ कर सकता है। उसके अलावा वहाँ पर एक्स्ट्रा चैलेंजिंग और प्रैक्टिस टेस्ट आते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस टेस्ट करके बच्चा वहाँ पर चीज़ें रिवाइज कर सकता है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देखेंगे, इट्स टोटली अप टू दैट, ये उन्हीं पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितना इसको यूज़ कर रहा है। नाउ दिस द नेक्स्ट वन थिंग, ये नेक्स्ट वन थिंग 6 ऑनवर्ड है वैसे सर, ठीक है। बेसिकली दिस इज फॉर द 9 to 12, बट इसकी प्रिपरेशन 6 ऑनवर्ड है। जैसे आपका बच्चा हमारा 5th में है, नेक्स्ट ईयर वी विल कम टू नो बच्चे को मेंटल मैथ्स का भी एक्स्ट्रा स्पेशल सब्जेक्ट लगाया है। बच्चा मैथ्स में बहुत तेज होते हैं अक्सर, उसके बावजूद भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स की तैयारी करता है आफ्टर +2 या ड्यूरिंग आफ्टर 10th या फिर ड्यूरिंग +1 नॉर्मली देखा होगा। वही चीज़ें मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर वहाँ डाल देती है, रीजनिंग के अंदर हो। सर आपको तो जैसे पता ही होगा, यू आर इन दिस वन सेक्टर, आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, ऑब्वियस सी बात है। नॉर्मल कैलकुलेशन को भी अलग तरीके से मॉडिफाई करके ट्रिकी वे के अंदर वैदिक मैथ्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है, ताकि वो टाइम के अंदर वो एक तरह से मैनेज कर पाए और कैलकुलेशन को बेटर ढंग से करें। तो इसके रिगार्डिंग भी
हम तैयार कर रहे हैं आगे के समय के लिए। एंड 9 ऑनवर्ड्स एज पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट इफ दे आर विलिंग टू ऑप्ट एनी पर्टिकुलर वन लाइन, तो हम लोग उन्हें स्पेशली हायर कर रहे हैं हम लोग। ओके, कोटा वालों के साथ हम लोग एक मैचिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर एक ब्रांच के साथ जो हमें एक्सेस देंगे लाइव क्लास का, ठीक है, जो बेनिफिशियल रहेगा इन फ्यूचर फॉर द स्टूडेंट्स। दैट इज बीइंग गोइंग ऑन। और ये इस साल हमारा स्टार्ट होगा।